Chapter 3. Two stories about flight. First, his first flight. Second, black aeroplane. Before you read, since the earliest time, humans have dreamt of conquering the skies. Here are two stories about flying. पुराने समय से ही इंसानों को आकाश को जीतने का सपना देखा है। इस बारे में यहाँ दो कहानियाँ हैं। First, a young seagull is afraid to fly. How does he conquer his fear? एक युवा सीगर उड़ने से डरता है। वह अपने इस डर को कैसे जीतता है? Second, a pirate is lost in the storm clouds. Does he arrive safe? Who helps him? एक पायलट तूफानी बादलों में खो गया है। क्या वह सुरक्षित आता है? कौन मदद करता है उसे? His first flight. The young seagull was alone on his ledge. उसकी पहली उड़ान। एक युवा सीगर अपने कगार पर अकेला था। His two brothers and sister had already flown away the day before. उसके दो भाई और बहन एक दिन पहले ही उड़ चुके थे। He had been afraid to fly with them. उसको उनके साथ उड़ने में डर लगता था। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. किसी तरह जब वह किनारे पर थोड़ा आगे बढ़ा और अपने पंख फड़फड़ाने की कोशिश की तो वह डर गया। The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. समुद्र काफ़ी विशाल था और वह काफ़ी गहरा भी था। He felt certain that his wings would never support him. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. उसे लगा कि उसके पंख कभी उसका साथ नहीं देंगे, तो वो सिर झुकाकर भाग गया और गड्ढे के नीचे उस छोटे छेद में जहाँ वो रात को सोता था वहाँ चला गया। Even when each of his brother and sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. यहाँ तक कि उसके छोटे भाई और छोटी बहन जिनके पंख उसके पंख से बहुत छोटे थे, किनारे तक दौड़े, अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गए, पर वो उड़ने का साहस नहीं जुटा पाया और उसे निराशा हुई। His father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his sledge unless he flew away. But for the life of him, he could not move. उसके माता पिता आए और उसे जोर जोर से पुकारते हुए उसे डांटने लगे, धमकी देते हुए कि जब तक वह नहीं उड़ता उसे खाना नहीं दिया जाएगा, पर वह अपने जीवन के लिए हिल भी ना सका। इधर अपग्रेडिंग का मतलब स्कोल्डिंग है। That was 24 hours ago. Since then nobody had come near him. यह 24 घंटे पहले की बात है। उसके बाद उसके पास कोई नहीं आया। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. एक दिन पहले पूरे दिन उसने अपने माता पिता को अपने छोटे भाइयों और बहनों के साथ उड़ते हुए देखा। उन्हें उड़ान की कला को और अच्छा किया, उन्हें सिखाया कि कैसे लहरों को पार करना है और मछली पकड़ना है। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle. वास्तव में उसने अपने बड़े भाई को उसकी पहली मछली पकड़ते हुए देखा और चट्टान पर खड़े हुए खाते हुए देखा, जबकि उसके माता पिता गर्व के साथ अपना चोंच उठाते हुए घूम रहे थे। And all the morning, the whole family had walked around a big patio midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. और पूरी सुबह उसका पूरा परिवार एक बड़े पठार के बीच में एक चट्टान के विपरीत उसे उसके कायरता पे ताने दे रहा था। स्किम का मतलब सतह के ठीक ऊपर हल्के से जाना। हेरिंग एक नरम पंख वाली समुद्री मछली है। The sun was now ascending the sky, blazing on the ledge that faced the south. सूरज अब आकाश पर चढ़ रहा था, दक्षिण की ओर मुख किए हुए अपने कगार पर चमक रहा था।
He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. उसे गर्मी महसूस हो रही थी क्योंकि उसने पिछले रात से कुछ नहीं खाया था. He stepped down. He stepped slowly out to the brink of his edge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. वह धीरे धीरे किनारे की कगार पर पहुंच गया और एक पैर पर खड़ा होकर दूसरे पैर को अपने पंख के नीचे छिपाकर उसने एक आंख बंद की, फिर दूसरी और सोने का नाटक किया. Still, they took no notice of him. फिर भी किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया. He saw his two brothers and his sister lying on the patio, dozing with their heads sunk into their neck. उसने देखा कि उसके दो भाई और उसकी बहन पहाड़ पर सो रहे थे और उनके सिर उनके गले में डूबे हुए थे. His father was preening the feathers on his white back. उसके पिता उसकी सफ़ेद पीठ पर पंख लगा रहे थे. प्रीनिंग का मतलब पंख बनाना. Only his mother was looking at him. सिर्फ उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी. She was standing on a little high hump on the patio, her white breast thrust forward. वह पठार के एक ऊंचे कुबड़ पर खड़ी थी. उसका सफ़ेद स्तन आगे की ओर जोर लगा रहा था. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. वह मछली के एक टुकड़े को फाड़ रही थी जो उसके पैरों पर पड़ा था और फिर चट्टान पर अपनी चोंच के हर एक भाग को खुरच रही थी. The sight of the food maddened him. खाने का दृश्य देखकर वो पागल हो रहा था. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. कैसे वो अपने खाने को फाड़ता था और अपना चोंच नुकीली करता था. गा गा गा, he cried, begging her to bring him some food. गा गा गा, वह अपनी माँ से कुछ खाना लाने के लिए भीख मांग रहा था. Caw, she screamed back derisively. उसने वापस चिल्लाया. But he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. लेकिन वह उदास होकर पुकारता रहा और एक मिनट के बाद उसने एक खुश भरी चीख निकाली. His mother had picked up a piece of fish and was flying across to get it. उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठाया और उड़ने लगी. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. वह बाहर झुक गया. वह उत्सुकता से आगे बढ़ा और एक चट्टान पर अपना पैर टपटपाते हुए जैसे ही उसकी माँ उसके पास उड़ के आ रही थी उसके पास जाने की कोशिश की. But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, a piece of the fish in her beak almost within reach of his beak. पर जब उसकी माँ उसके ठीक विपरीत थी, वह रुक गई. उसके पंख स्थायी हो गया. मछली का टुकड़ा उसके चोंच से लगभग पहुंच के भीतर था. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. वह कुछ पल चकित रहा. वह ये सोच रहा था कि उसकी माँ उसके पास क्यों नहीं आई. पर फिर भूख से पागल हुए उसने मछली पर छलांग लगाई. With a loud scream, he fell outward and downwards into the space. जोर की चीख के साथ वह गिर गया. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. तब वह बहुत डर गया और उसका हृदय रुक गया.
He could hear nothing. वह कुछ नहीं सुन पा रहा था. But it only lasted a minute. पर यह चीज़ बस कुछ मिनट के लिए रही. The next moment he felt his wings spread outwards. दूसरी ही पल उसने यह महसूस किया कि उसके पंख बाहर की ओर फैले हुए हैं. The wind rushed between his breast feather, then under his stomach and against his wing. हवा उसके स्तनों के पंखों पर, फिर उसके पेट के नीचे और उसके पंखों से टकराने लगी. He could feel the tips of his wings cutting through the air. वह अपने पंखों से हवा के कटने का महसूस कर रहा था. He was not falling headlong now. वह अब सिर के बल नीचे नहीं गिर रहा था. He was soaring gradually downwards and upwards. वह धीरे धीरे नीचे की ओर और बाहर की ओर जोर से शोर कर रहा. He was soaring gradually downwards and outwards. वह धीरे धीरे नीचे और बाहर की ओर बढ़ रहा था. He was no longer afraid. उसे अब डर नहीं लग रहा था. He just felt a bit dizzy. उसे बस थोड़ा चक्कर आ रहा था. Then he flapped his wings once and he soared upward. फिर उसने एक बार अपने पंख फड़फड़ाए और वह ऊपर की ओर बढ़ गया. गा 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 गौ कोर आ. His mother sobbed past him. गा 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 गौ कोर आ. उसकी माँ उसके चारों ओर घूमने लगी. Her wings making a loud noise. उसके पंखों से जोर की आवाज़ आ रही थी. He answered her with another scream. उसने अपनी माँ को चिल्लाकर जवाब दिया. Then his father flew over him screaming. फिर उसके पिता उसके पास उड़कर आए चिल्लाते हुए. He saw his 2 brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. उसके 2 भाई और बहन उसके चारों ओर उड़ने लगे और गोता लगाने लगे. Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commanded himself to dive and soar and curve, shrinking shrilly. वो पूरे तरीके से भूल गया था कि उसे उड़ना नहीं आता था. उसे हमेशा से उड़ना नहीं आता था और खुद को गोता लगाने और उड़ने और वक्र करने के लिए प्रशंसा की चिल्लाते हुए. He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. वह अब समुद्र के पास था, सीधे उस पर उड़ रहा था, समुद्र के ऊपर का सामना कर रहा था. He saw a vast green sea beneath him, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and caught amusedly. उसने अपने नीचे एक विशाल हरा समुद्र देखा, जिसमें छोटी लकीरें थीं. उस पर आगे बढ़ते हुए और उसने अपनी चोट साइड में करते हुए उनका मजाक उड़ाया. His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. उसके माता पिता, उसके भाई और उसकी बहन एक हरे जमीन पर उसके आगे ही उतर चुके थे. They were beckoning to him, calling shrilly. वे उसे इशारा कर रहे थे, जोर जोर से पुकार रहे थे. He dropped his legs to stand on the green sea. उसने हरे समुद्र पर खड़े होने के लिए अपने पैर रखे. His legs sank into it. उसके पैर उसमें डूबने लगे. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. वह डर के मारे चिल्लाने लगा और उसने अपने पंख फड़फड़ाते हुए फिर से उठने का प्रयास किया. But he was tired and weak with hunger and he could not rise, exhausted by the strange exercise. पर वो थक चुका था और भूख से कमज़ोर था और वह उठ नहीं सकता था और उसे इसके वजह से बहुत थकान थी. His feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no further. उसके पैर हरे समुद्र में डूबने लगे. फिर उसका पेट उसे छू गया और वह आगे नहीं डूबा. He was floating on it,
and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of top fish. वह उस पर तैर रहा था और उसके चारों ओर उसका परिवार चिल्ला रहा था, उसकी प्रशंसा कर रहा था और उनकी चोंच उसे मछली के टुकड़े चढ़ा रही थी और उनकी चोंच उसे मछली के टुकड़े दे रही थी. He had made his first flight. उसने अपनी पहली उड़ान भरी. Thinking about the text, पाठ के बारे में सोचना. Question 1. Why was the young seagull afraid to fly? Do you think all young birds are afraid to make their first flight? Or are some birds more timid than others? Do you think a human baby also find it a challenge to take its first step? युवा सीगल उड़ने से क्यों डरता था? क्या आपको लगता है कि सभी पक्षी पहली बार उड़ने से डरते हैं या फिर कुछ पक्षी कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर होते हैं दूसरों के मुकाबले? क्या आपको ऐसा लगता है कि मनुष्य का बच्चा भी पहला कदम रखने से डरता है? Question 2. The sight of the food maddened him. What does this suggest? What compelled the young seagull to finally fly? भोजन की दृष्टि से उसे पागल कर दिया. यह क्या दिखाता है? इससे युवा सीगल को आखिर उड़ने के लिए क्यों मजबूर किया? Question 3. They were beckoning to him, calling shrilly. Why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? वे उसे पुकार रहे थे और चिल्लाकर पुकार रहे थे. उसके माता और पिता ने उसे क्यों धमकाया और उड़ने के लिए उकसाया? Question 4. Have you ever had a similar experience where your parents encouraged you to do something that you were too scared to try? Discuss this in pairs or group. क्या आपके साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जहां आपके माता पिता ने आपको कुछ करने के लिए प्रेरित किया है जिससे आप बहुत डरते थे? Question 5. In the case of a bird flying, it seems a natural act and a foregone conclusion that it should succeed. In the example you have given in answers to the previous question, was your success guaranteed or was it important for you to try regardless of possibility of failure? पक्षी के उड़ने की स्थिति में यह एक संभावित कार्य रखता है और एक पूर्ण निष्कर्ष है कि इसे सफल होना चाहिए. पिछले क्वेश्चन के उत्तर में आपके द्वारा दिए गए उदाहरण में क्या आपकी सफलता गारंटी थी या असफलता की संभावना की परवाह किए बिना प्रयास करना आपके लिए ज़रूरी था? Speaking. We have just read about the first flight of a young seagull. हमने अभी अभी एक युवा सीगल की पहली उड़ान के बारे में पढ़ा. Your teacher will now divide the class into groups. आपका शिक्षक होगा अब कक्षा को समूह में विभाजित करें. Each group will work on one of the following topics. हर एक ग्रुप निम्नलिखित कार्य करेगा. Prepare a presentation with your group member and then present it to the entire class. अपने ग्रुप के सदस्यों के साथ एक प्रस्तुति तैयार करें और पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत करें. फर्स्ट, प्रोग्रेशन ऑफ मॉडल्स ऑफ एयरप्लेन. एयरप्लेन के मॉडलों की प्रगति. सेकेंड, प्रोग्रेशन ऑफ मॉडल्स ऑफ मोटर कार्स. मोटर्स कार की मॉडल की प्रगति. थर्ड, बर्ड्स एंड देयर विंग स्पैन. पक्षी और उनके पंख. फैलाना. फोर्थ, माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रेसिंग देयर फ्लाइट्स. माइग्रेटरी पक्षी
प्रवासी पक्षी के उड़ान का पता लगाना। Writing. Write a short composition on your initial attempts at learning a skill. You could describe the challenges of learning to ride a bicycle or learning to swim. Make it as humorous as possible. कोई भी नई चीज़ सीखने के लिए अपने प्रारंभिक प्रयासों के बारे में लिखिए। आप साइकिल चलाने सीखने या तैरने सीखने की चुनौतियों के बारे में लिख सकते हैं। इसे जितना चाहे उतना मजाकिया बनाइए। चैप्टर 2 द ब्लैक एरोप्लेन, काला हवाई जहाज। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड द स्टार वॉज शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। चांद मेरे पीछे पूर्व दिशा में आ रहा था और मेरे ऊपर आकाश में तारे चमक रहे थे। There wasn't a cloud in the sky. आसमान में एक बादल नहीं था। I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. मैं सोए हुए इलाकों के ऊपर अकेले रहकर खुश था। I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. मैं अपनी पुराने डकोटा हवाई जहाज को फ्रांस के ऊपर से वापस इंग्लैंड ले जा रहा था। I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. मैं छुट्टियों के बारे में सपने देख रहा था और अपने परिवार के साथ रहने का इंतज़ार कर रहा था। I looked at my watch, 1:30 in the morning. मैंने अपने घड़ी पर देखा। सुबह के 1:30 बज रहे थे। I should call Paris Control soon, I thought. मैंने सोचा मुझे पेरिस कंट्रोल को जल्दी ही कॉल करना चाहिए। As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of the big city in front of me. जैसे ही मैंने एरोप्लेन से नीचे देखा, मैंने बड़े शहर की रोशनी देखी। I switched on the radio and said, Paris Control, Dakota DS-088, here. Can you hear me? मैंने रेडियो ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088, या क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, ओवर। The voice from the radio answered me immediately. DS-008, I can hear you. रेडियो की आवाज़ मुझे तुरंत सुनाई दी। DS-088, मैं आपको सुन सकता हूँ। You ought to turn 12 degrees west now, DS-088, over. आपको अब 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ना चाहिए, DS-088, over. I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank, and turned the Dakota 12 degrees west towards England. मैंने अपने कंपास की जांच की और अपने दूसरे और अंतिम फ्यूल टैंक में स्विच किया और डकोटा को बाहर 12 डिग्री पश्चिम में इंग्लैंड की ओर मोड़ दिया। I will be there in time for breakfast, I thought. मैं नाश्ते के लिए समय पर आऊँगा, मैंने सोचा। A good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. एक अच्छा बड़ा अंग्रेजी नाश्ता। सब कुछ ठीक चल रहा था। यह एक आसान उड़ान थी। Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the crowd.
150 किलोमीटर पीछे था पेरिस जब मैंने बादल देखे। स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी बादल। दे वर ह्यूज, वह बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। वह एक गाढ़े पहाड़ जैसे मेरे सामने खड़े थे। I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly across them to the north or south. मुझे पता था कि मैं उनके ऊपर और नहीं उड़ सकता और मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं था वे उत्तर या दक्षिण की ओर उड़ सके। I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted the breakfast. मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए, मैंने सोचा, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। मुझे वह नाश्ता चाहिए था। I will take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. मैं जोखिम लूँगा, मैंने सोचा, और उस पुराने डकोटा को सीधा तूफान में उड़ा दिया। Inside the clouds, everything was suddenly black. बादलों के अंदर सब कुछ अचानक से काला हो गया। It was impossible to see anything outside the aeroplane. एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना असंभव था। The old aeroplane jumped and twisted in the air. पुराना एरोप्लेन हवा में उछला और मुड़ गया। I looked at the compass. मैंने कंपास को देखा। I couldn't believe my eyes. The compass was turning round and round and round. It was dead. मुझे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ। कंपास गोल गोल घूम रहा था। वह मर चुका था। It would not work. The other instrument was suddenly dead too. वो अब काम नहीं करेगा। बाकी उपकरण भी अचानक से मर गए। I tried the radio. मैंने रेडियो की भी कोशिश की। Paris control, can you hear me? Paris control, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? There was no answer. कोई जवाब नहीं आया। The radio was dead too. रेडियो भी खराब हो गया था। I had no radio, no compass, and I could not see where I was. मेरे पास न रेडियो था न कंपास था और मुझे यह नहीं दिख रहा था कि मैं कहाँ हूँ। I was lost in the storm. मैं तूफान में खो चुका था। Then, in the black clouds, quite near me, I saw another aeroplane. फिर मेरे बिल्कुल पास काले बादलों में मैंने एक और हवाई जहाज़ देखा। It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. इसके पंखों पर कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन मैं इसे तूफान के माध्यम से अपने बगल में उड़ते हुए देख सकता था। I was very glad to see another person. I could see the pirate's face turn towards me. मैं देख सकता था कि पायरेट मेरे तरफ मुड़ा। I was very glad to see another person. मैं दूसरे मनुष्य को देखकर बहुत खुश था। He lifted one hand and waved. उसने अपना एक हाथ उठाया और लहराया। Follow me, he was saying. Follow me. उसने मुझे अपने पीछा करने को कहा। He knows that I am lost, I thought. मैंने सोचा, उसे पता है कि मैं खो चुका हूँ।
ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी। वो मेरी मदद कर रहा है। He turned his airplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. उसने अपने हवाई जहाज़ को धीरे धीरे मेरे डकोटा के सामने उत्तर की ओर घुमाया ताकि मेरे लिए उसका पीछा करना आसान हो जाए। I was very happy to go behind the strange airplane like an obedient child. एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह अजीबोगरीब हवाई जहाज़ के पीछे जाकर मुझे बहुत खुशी हुई। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. आधे घंटे के बाद वो काला हवाई जहाज़ अभी भी मेरे आगे था बादलों में। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब डकोटा में उतना ही फ्यूल बचा था कि वो 5 से 10 मिनट और उड़ सके। I was starting to feel frightened again. मुझे अब फिर से डर लगने लगा था। But then he started to go down and I followed through the storm. पर तभी वह नीचे जाने लगा और मैंने उसका पीछा किया। Suddenly I came out of the crowd and saw 2 long straight lines of light in front of me. अचानक से मैं बादलों के बाहर आया और अपने सामने रोशनी की 2 लंबी रेखाएं देखी। It was runaway, an airport. I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. वो एक रनअवे था, एक एयरपोर्ट। मैं सुरक्षित था। मैं अपने दोस्त जो कि ब्लैक हवाई जहाज़ में था उसके तरफ मुड़ा, पर आसमान एकदम खाली था। There was nothing there. वहाँ पर कुछ नहीं था। The black airplane was gone. I could not see it anywhere. काला हवाई जहाज़ चला गया था। मुझे कुछ भी कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था। I landed and I was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. मैं उतरा और कंट्रोल टावर के पास पुराने डकोटा से दूर जाने के लिए दुखी नहीं हुआ। I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. मैंने जाकर कंट्रोल सेंटर में एक महिला से पूछा कि मैं कहाँ हूँ और दूसरा पायलट कौन है। मैं उसको धन्यवाद करना चाहता हूँ। She looked at me very strangely and then laughed. उसने मुझे बहुत अजीब तरीके से देखा और फिर हंसी। Another aeroplane up there in this storm. No other airplanes were flying tonight. एक और हवाई जहाज़ इस तूफान के ऊपर। आज रात कोई अन्य हवाई जहाज़ नहीं उड़ रहा था। Yours was the only one I could see on the radar. केवल आपका ही था जिसे मैं रडार पर देख सकती थी। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? तो बिना कंपास या रेडियो और मेरे टैंक में बिना किसी फ्यूल मैं सुरक्षित रूप में यहाँ कैसे पहुँचा? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? वो अजीब हवाई जहाज़ में कौन पायलट था जो बिना किसी रोशनी के तूफान में उड़ रहा था? Thinking about the test. Question 1. I will take the risk. What is the risk? Why does the narrator take it? मैं जोखिम लूँगा। जोखिम क्या है? कथाकार इसे क्यों लेता है? Question 2. Describe the narrator's experience as he flew the aeroplane into the storm. नरेटर की उस एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करें जिसमें वह
हवाई जहाज तूफान में उड़ा रहा था। क्वेश्चन 3. Why does the narrator say I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota? नरेटर ने ऐसा क्यों कहा कि मैं उतरा और पुराने डकोटा से दूर जाने के लिए खेद नहीं था? Question 4. What made the woman in the control center look at the narrator strangely? कंट्रोल सेंटर की महिला ने नरेटर को अजीब तरीके से क्यों देखा? Question 5. Who do you think helped the narrator to reach safely? Discuss this among yourself and give reasons for your answer. आपको क्या लगता है किसने नरेटर को सुरक्षित रूप से पहुंचाने में मदद की? इस पर आपस में चर्चा करें और अपने उत्तर बताएं. Thinking about language. Study the sentences given below. निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ें. A. They looked like black mountains. वे काले पहाड़ों की तरह दिखते थे. B. Inside the clouds, everything was suddenly black. बादलों के अंदर सब कुछ अचानक काला हो गया. In the black clouds near me, I saw another plane. मेरे पास काले बादलों में मैंने एक और एरोप्लेन देखा. D. The strange black aeroplane was there. एक अजीब काला हवाई जहाज वहाँ था. The word black in sentences A and C refers to the very darkest color. But in B and D, it means without light, with no light. A और C में काला शब्द का अर्थ है गहरा रंग, मगर B और D में इसका मतलब बिना रोशनी है. Black has a variety of meaning in different contexts. For example, काले रंग का विभिन्न अर्थ होता है अलग अलग वाक्यों में, जैसे कि A. I prefer black tea means I prefer tea without milk. मुझे काली चाय पसंद है मतलब मुझे बिना दूध के चाय पसंद है. B. With increasing pollution, the future of the world is black means with increasing pollution, the future of the world is very depressing or without hope. बढ़ते प्रदूषण के वजह से दुनिया का भविष्य काला है. मतलब बढ़ते प्रदूषण से दुनिया का भविष्य बेहद निराशाजनक, बिना उम्मीद के है. Now try to guess the meanings of the word black in the sentences given below. Check the meanings in the dictionary and find out whether you have guessed right. Go and have a bath. Your hands and face are absolutely black. Second, the taxi driver gave Ratan a black look as he crossed the road when the traffic light was green. Third, the bombardment of Hiroshima is one of the blackest crimes against humanity. Fourth, very few people enjoy Harold Sprinter's black comedy. Fifth, sometimes shopkeepers store essential goods to create false scarcity and then sell these in black. Sixth, villagers had beaten the criminal black and blue. Look at these sentences taken from the lesson you have just read. पाठ में से इन वाक्यों को पढ़ें. A.
I was flying my old Dakota airplane. मैं अपना पुराना डकोटा हवाई जहाज उड़ा रहा था. B. The young seagull had been afraid to fly with them. युवा सीगर उनके साथ उड़ने से डरता था. In the first sentence, the author was controlling an aircraft in the air. पहले वाक्य में ऑथर एक एयरक्राफ्ट को कंट्रोल कर रहा था. Another example is children are flying kites. एक और उदाहरण है बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं. In the second sentence, the seagull was afraid to move through the air using its wing. दूसरे वाक्य में सीगर अपने पंखों का उपयोग करते हुए हवा में उड़ने से डरता है. Match the phrases given under column A with their meanings given under column B. Column A. First, fly a flag. Second, fly into range. Third, fly along. Fourth, fly high. Fifth, fly the coop. Column B. Move quickly or suddenly. Be successful. Display a flag on a long pole. Escape from a place. Become suddenly very angry. We know that the word fly of birds or insects means to move through air using wings. Tick the words which have the same or nearly the same meaning. हमें पता है कि फ्लाई शब्द का मतलब होता है अपने पंख हवा में हिलाना. निम्नलिखित समान या समान अर्थ वाले शब्दों पर निशान लगाएं. स्कूप, ascend, sink, descend, stay. Flick, float, dart, soar, fall. Paddle, ride, hover, shoot, sail. Flutter, skim, ride, spring, flap. Writing. Have you ever been alone or away from home during a thunderstorm? Narrate your experience in a paragraph. क्या आप कभी अकेले या फिर घर से दूर रहे हैं तूफान के वक्त? अपना एक्सपीरियंस को एक पैराग्राफ में बताएं. इन दिस सेशन, इस पार्ट में, व्हाट वी हैव डन, हमने क्या किया. प्रोवाइडेड 2 stories about flying. One about a bird, another about a human being in a plane. हमने उड़ने की 2 कहानियाँ देखी. एक पक्षी के बारे में, दूसरा मनुष्य एक हवाई जहाज के बारे में. What you can do, आप क्या कर सकते हैं. As they read the story of the seagull, students can be asked to imagine how a baby learns to walk and compare and contrast the 2 situations. जैसे हम सीगल की कहानी पढ़ते हैं, विद्यार्थी से पूछा जा सकता है कि एक बच्चा चलना कैसे सीखता है, और दोनों ही सिचुएशन को कंपेयर करने को पूछ सकते हैं. After they read the second story, students should be asked for their ideas about the phantom plane. Was it really there, or did the pilot imagine it? If the students feel it was really there, who could have been piloting it? दूसरी कहानी पढ़ने के बाद छात्रों से विमान के बारे में उनके विचार पूछे जाएं.
क्या यह वास्तव में वहाँ था या पायलट ने इसकी कल्पना की थी? अगर छात्रों को लगता है कि यह वास्तव में था तो इसे कौन चला रहा था? Ask students to narrate their own stories about flying. एक छात्रों से उड़ान के बारे में अपनी कहानियाँ सुनाने के लिए कहें. It could be about flying in an airplane or flying a kite or about watching a bird flying. In short, anything to do with the flight. यह एक हवाई जहाज़ में उड़ने के बारे में हो सकता है या पतंग उड़ाने के बारे में या एक पक्षी को उड़ते हुए देखने के बारे में. उड़ने के बारे में कुछ भी. Give students 10 minutes to think quietly about the topic. During this time, they can make notes about what they want to say. छात्रों को इस विषय के बारे में 10 मिनट सोचने के लिए दें. इस टाइम में वह उन्हें क्या बोलना है उसका नोट्स बना सकते हैं. Then ask for volunteer speaker. फिर वक्ताओं के लिए पूछें. Compound words whose parts means just the opposite or something else. Quicksand works slowly. शब्द जिनके भागों का अर्थ बिल्कुल विपरीत या कुछ और होता है. Quicksand धीमी गति से काम करता है. There is no egg in eggplant, nor ham in hamburger, neither apple nor pie in pineapple. Boxing rings are square. How to tell wild animals. जंगली जानवरों को कैसे बताएं? This humorous poem suggests some dangerous ways to identify or tell wild animals. Read it aloud, keeping to a strong and regular rhythm. यह हास्य कविता जंगली जानवरों को पहचानने या बताने के कुछ खतरनाक तरीके सुझाती है. इसे ज़ोर से पढ़ें, एक मजबूत और नियमित लय रखते हुए. If ever you should go by chance, go to jungles in the east. अगर हमें कभी संयोग से पूर्व के जंगलों में जाना पड़े. And if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it's an Asian lion. और वहाँ हमें एक ऐसा जानवर दिखाई दे रहा है जिसकी त्वचा टेढ़ी है और वह दहाड़ सकता है जिससे हम डर से मर सकते हैं. इसका मतलब है कि हमने एक एशियन शेर को देखा है. Or if sometime when roaming around, a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. या फिर कुछ समय घूमते हुए कोई महान जंगली जानवर आपका स्वागत करता है. पीले शरीर में कारी धारियों के साथ ध्यान दें कि क्या वह आपको खाता है. यह सरल नियम आपको बंगाल टाइगर को समझने में मदद कर सकता है. If strolling forth, a beast you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do no good to roll with pain. He will only lap and lap again. आगे चलते हुए एक जानवर जिससे आप देखते हैं जिसकी खाल धब्बेदार है, जैसे ही वह आप पर
कूदता है आपको पता चल जाएगा कि यह तेंदुआ है। दर्द में चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, यह आप पे हमला करता ही रहेगा। If when you are walking around your yard, you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more care. जब आप अपने यार्ड के चारों ओर घूम रहे हैं, वहाँ एक प्राणी से मिलेंगे जो आपको बहुत गले लगाएगा। तब आप मान लीजिए यह एक भालू है। यदि आपको कोई संदेह है तो मुझे लगता है कि वह आपको एक और बार दोहरा देगा। दो टू डिस्टिंग्विश beast of prey, a novice might nonplus the crocodile you always may tell from the hyenas. Hyenas come with merry smiles, but if they were weak, they are crocodile. हालांकि शिकार के जानवरों में अंतर करने के लिए एक नौसिखिया नॉनप्लस हो सकता है। बकरबक्का और मगरमच्छ में आप अंतर बता सकते हैं। बकरबक्का हमेशा मुस्कान के साथ आते हैं, लेकिन अगर वे रोते हैं तो वह मगरमच्छ है। The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all, and not a single wing. If there is nothing on the tree, this is the chameleon you see. एक असली गिरगिट छोटा होता है, छिपकली की तरह। उसके पास कोई कान नहीं होता और एक भी पंख नहीं है। अगर पेड़ पर कुछ भी नहीं है तो तुम गिरगिट देख सकते हो। ग्रॉसी ग्राउंड बैकग्राउंड, शमी discern, make out, identify. Hide, animal skin. Peppered, hair, covered with spots. Kiss, a gentle loving touch. Novice, someone new to a job. Nonplus, usually only in the passive, puzzled, confused, or surprised. Thinking about the poem. First, does dine really rhyme with rhyme? Can you say it in such a way that it does? क्या डाइन यानी मरना वाकई में शेर के साथ तुकबंदी करता है? क्या आप इसे इस तरह से कह सकते हैं कि यह करता है? Second, how does the poet suggest that you identify the lion and the tiger? When can you do so according to him? कवि कैसे सुझाव देता है कि आप शेर और बाघ को पहचान सकते हैं? उनके अनुसार आप ऐसा कब कर सकते हैं? Third, do you think the words left and left in the third stanza are spelled correctly? Why does the poet spell them like this? क्या आपको लगता है कि तीसरे स्टैंजा में लेफ्ट LEPT and लेफ्ट LEP शब्दों की स्पेलिंग सही है? कवि ने उन्हें इस तरह क्यों लिखा? Question 4. Do you know what a bear hug is? It's a friendly and strong hug, such as bears are thought to give as they attack you. क्या आप जानते हैं कि बियर हग क्या होता है? यह एक दोस्ताना और मजबूत गले लगाना है, जैसे कि भालू देने के लिए सोचा जाता है जब वह आप पर हमला करता है। Again, hyenas are thought to laugh and crocodile to weep crocodile tears as they swallow their victims.
फिर माना जाता है कि लकड़बग्घे हंसते हैं और मगरमच्छ रोते हैं, मगरमच्छ के आंसू, जब वे अपने शिकार को निगलते हैं। Are there similar expression and popular ideas about wild animals in your own language? क्या आपकी अपनी भाषा में जंगली जानवरों के बारे में समान भाव और लोकप्रिय विचार हैं? Fifth, look at the rhyme. A novice might not guess. How would you write this correctly? Why in the poet's incorrect rhyme better in the poem? एक नौसिखिया शायद नॉन प्लस है, यानी उलझ जाता है। इस वाक्य को आप सही तरीके से कैसे लिख सकते हैं? कविता में कवि की गलत पंक्ति बेहतर क्यों है? 6. Can you find other examples of poets talking liberties with language, either in English or in your own language? Can you find examples of humorous poems in your own language? क्या आप अंग्रेज़ी में या अपनी भाषा में भाषा के साथ स्वतंत्रता देने वाले कवियों के अन्य उदाहरण पा सकते हैं? क्या आप अपनी भाषा में हास्य कविताओं के उदाहरण दे सकते हैं? 7th, much of the humor in the poem arises from the way language is used, although the ideas are funny as well. If there were particular lines in the poem that you specifically write, share these with the class, speaking briefly about what it is about, the ideas or the language that you like or find funny. कविता में हास्य भाषा के प्रयोग के तरीके से उत्पन्न होता है, हालांकि विचार भी मजाकिया हैं। यदि कविता में ऐसी विशेष पंक्तियां हैं जो आपको विशेष रूप से पसंद है, तो उन्हें कक्षा के साथ साझा करें। संक्षेप में बोलें कि इनमें आपको क्या पसंद आया है। द बॉय पोएम। अ बॉय रोसेस अ बॉय। एक लड़का गेंद खो दिया है। ही इज़ वेरी अपसेट। वो बहुत दुखी है। अ बॉय डजंट कॉस्ट मच नॉर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉय। एक गेंद ज़्यादा महंगी नहीं होती, ना कि उसे ख़रीदना मुश्किल होता है। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट। फिर वह लड़का इतना दुखी क्यों है? Read the poem to see what the poet thinks has been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something. यह देखने के लिए कविता पढ़ें कि कवि क्या सोचते हैं कि खो गया है और लड़के को इससे क्या सीख मिलती है। What is the boy now? Who has lost his ball? What is he to do? वह लड़का जिसने बॉल खो दी है, वह अब क्या करेगा? I saw it go, merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. मैंने देखा कि वह सड़क पे उछलते हुए नीचे जा रहा था और फिर खुशी से वहाँ पानी में चला गया। No use to say, oh, there are other boys. ओ वहाँ अन्य गेंदें हैं, यह कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down. वह लड़का दुख से कांप जाता है। वह एकदम रिजिड खड़ा होता है, कांप रहा होता है और नीचे देख रहा होता है। All his young days into the harbor where his ball went.
जहाँ उसकी बॉय चली गई है वहाँ वह अपने बचपन के दिनों को देखता है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसमें दखल अंदाजी नहीं करूँगा। अ डाइम अनदर बॉय इज़ वर्थलेस। अ डाइम मतलब 10 पैसे या दूसरी बॉल उसके लिए बेकार है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। अब उस लड़के को अपनी पहली जिम्मेदारी समझनी होगी इस संपत्ति की दुनिया में। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय। लोग गेंद ले लेंगे, वह गेंद खोएगी, नन्हे बालक। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई भी नई बॉल नहीं देगा। मनी इज़ एक्सटर्नल, पैसा बाहरी है। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। वह सीख रहा है अपनी हताश आँखों के पीछे। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, नुकसान के ज्ञान को। हाउ टू स्टैंड अप, नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। कैसे खड़ा होना है, यह जानना कि हर आदमी को एक दिन क्या पता होना चाहिए। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और ज़्यादातर कई दिनों तक जानते हैं कि कैसे खड़ा होना है। ग्रॉसरी, ओ देयर आर अदर बॉयज। द वर्ड सजेस्ट दैट द लॉस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इनफ टू वरी अबाउट। यह वाक्य बताता है कि कोई भी चीज़ खो जाए तो उसकी ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। शेकिंग ग्रीफ, सैडनेस विच ग्रेटली अफेक्ट्स द बॉय। दुख जो बच्चे पर बहुत असर डाली है। रिजिड, स्टिफ, रिजिड मतलब कड़ा। इंट्रूड ऑन, हियर टू एंटर अ सिचुएशन वेयर वन इज़ नॉट वेलकम। यहाँ ऐसी स्थिति में प्रवेश करना जहाँ किसी ने स्वागत नहीं किया। अ डाइम 10 सेंट्स, 10 सेंट्स मतलब 10 पैसे US डॉलर के। डेस्परेट, होपलेस, निराशाजनक। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस, व्हाट इट मीन्स टू लूज समथिंग। खोने की प्रकृति को समझना, कुछ खोने का क्या अर्थ है। एपिस्टेमोलॉजी, द ग्रीक वर्ड एपिस्टेमी मीन्स नॉलेज। ग्रीक शब्द एपिस्टेमी का मतलब होता है ज्ञान। इट कम्स फ्रॉम अ वर्ड मीनिंग टू अंडरस्टैंड, टू नो। यह एक शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसका मतलब है जानना या समझना। एपिस्टेमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ नॉलेज इटसेल्फ। एपिस्टेमोलॉजी स्वयं ज्ञान की प्रकृति का अध्ययन करना है। थिंकिंग अबाउट द पोएम, इन पेयर्स अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन। जोड़े में निम्नलिखित प्रश्नों को हल करें। क्वेश्चन 1, वाई डज द पोएट say I would not intrude on him? Why doesn't he offer him money to buy another ball? कवि क्यों कहता है कि मैं उसमें दखल अंदाजी नहीं करूँगा? वह उसे पैसे क्यों नहीं देता दूसरी बॉल खरीदने के लिए? सेकेंड, staring down all his young days into the harbor where his ball went. Do you think the boy has had the ball for a long time? क्या आपको लगता है कि उस लड़के के पास वह बॉल बहुत लंबे समय तक थी? Is it linked to the memories of days when he played with them? क्या यह उन दिनों के यादों से जुड़ा है जब वह इनके साथ खेला करता था? थर्ड,
What does in the world of possession mean? संपत्ति की दुनिया में से कवि का क्या अर्थ है? Do you think the boy has lost anything earlier? Pick out the words that suggest the answer. क्या आपको लगता है कि उस लड़के ने पहले कभी कुछ खोया है? उन शब्दों को चुनिए जो यह सजेस्ट करता है. Fifth, what does the poet say the boy is learning from the loss of the boy? Try to explain this in your own words. कवि क्या कहता है कि लड़के ने गेंद खोने से क्या सीखा? इसे अपने शब्दों में समझाने का प्रयास करें. 6. Have you ever lost something you liked very much? Write a paragraph describing how you felt then and saying whether and how you got over your loss. क्या आपने कभी कुछ ऐसा खोया है जो आपको बहुत पसंद था? एक पैराग्राफ लिखें और बताएं कि आपने उस समय कैसा महसूस किया था और अपने इस नुकसान से आप कैसे उभरे थे.